ఉంటుంది ఇంటెన్షన్ ఇన్ అవర్ మైండ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ అవర్ इंटेंशन शुड बी राइट. ఒకసారి మనం अपने अंदर जाग के देखना कि इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, बोलने के पीछे, करने के पीछे, व्हाट इज माय इंटेंशन, वेदर इट इज राइट आर రాంగ్, వాట్ ఈజ్ మై ఇంటెన్షన్, నా ఉద్దేశం ఏంటిది. ఎవరు చూడాలా? మనమే చూసుకోవాలి. మనమే చూసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళు కాదు. हमको ही देखना है कि ये करने के पीछे, ये देखने के पीछे, ये बोलने के पीछे मेरा क्या इंटेंशन है, मेरा क्या उद्देश्य है. ये अपने को ही देखना है, किसी और को नहीं. बिकॉज कौन देख सकता? हु विल सी इनसाइड यू? ఎవరన్నా చూడగలుగుతారా మీ మైండ్లో ఏం నడుస్తుందో? ఎవరు చూడలేరు కదా. మరి ఎవరు చూడాలా? మనమే చూసుకోవాలి. ఎవరు చూడాలా? మనమే చూసుకోవాలా. ఎందుకు? దాని ఫలితం మనమే అనుభవించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనమే చూసుకోవాలి. ఎవరికి వస్తుంది దాని ఫలితం? उसका फल किसको मिलता? उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता? अपने को. वी शुड बियर दैट रिजल्ट. सो इसीलिए हम सही है या नहीं है ये हमको अंदर जाग के देखना पड़ता. दुनिया, पूरी दुनिया मिलके भी नहीं देख सकता तुमको. कांट सी क्या चल रहा अंदर, अंदर क्या चल रहा. नो वन इन द वर्ल्ड, नो वन, कोई नहीं देख सकता. ఎవరు చూడలేరు. सिर्फ हमको ही देखना है. वी शुड नो इट. हमको ही परखना है क्या है, क्या मैं सोच रहा हूँ और उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मैं कर रहा हूँ उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है. व्हाट इज माई इंटेंशन, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. समझ में आ रहा है? क्योंकि दूसरा चाहे तो भी नहीं देख सकता. अगर वो दूरबीन से या माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से कोई भी स्कोप लगाए तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आता. समझ में आ रहा है? सिर्फ हमको ही समझ में आता. कभी कभी हमको भी समझ में नहीं आता. हमको समझ में नहीं आता इसलिए तो ऐसी हालत है. हमारे अंदर क्या चल रहा अगर हमको समझ में आता तो ऐसा हालत नहीं बनता. समझ में? हम बेहोशी में हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा हमको पता ही नहीं. सो बिकॉज ऑफ दैट आज हमारी ये परिस्थिति है. वी आर इन दिस सिचुएशन. మనం ఈ సిచ్యువేషన్లో, ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాం. బికాజ్ వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకు ఒక ఫ్రెండు ఒక ఇష్యూ చెప్పాడు. అదేంటిదంటే చిన్నది. వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ ఈస్, ఒక మొబైల్ తీసుకున్నాడు ఆయన. ఏం తీసుకున్నాడు? మొబైల్. ఒక మొబైల్ తీసుకున్నాడు. సమ్ 20,000 పెట్టావు మొబైల్ తీసుకున్నాడు. ఉదాహరణ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20,000 పెట్టి ఒక మొబైల్ తీసుకున్నాడు. తీసుకుని వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, సార్ నేను ఒక మొబైల్ తీసుకున్నా, ఎంత అయింది? 20,000 అయింది. కానీ ఇంకో అయినా తీసుకున్నాడు మా దగ్గర, వేరే స్టాప్, సేమ్ మొబైల్, సేమ్ కంపెనీ, సేమ్ మొబైల్. అవి ఉంటాయి కదా దాంట్లో, సమ్ ప్రో ప్లస్ బిస్ అవన్నీ సేమ్ థింగ్, మోడల్ కూడా సేమే. సార్ ఇది నాకు ఎక్కువ పడ్డది. ఎంత పడ్డది? నాకు 20,000 పడ్డది. ఇంకొక ఆయన స్టాప్ తీసుకున్నాడు, ఆయనకి ఎంత పడ్డది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకెంత పడ్డది? 20 పడ్డది, 20K. ఆయనకి ఎంత పడ్డది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16K పడ్డది. ఓకే, ఈయన ఒక 2 రోజుల ముందు తీసుకున్నాడు, ఒక 2 days బిఫోర్ తీసుకున్నాడు. ఈయన ఒక 2 days ఆఫ్టర్ తీసుకున్నాడు. సో ఈయన
బాధ ఏంటిది? నాకు ఎక్కువ వచ్చింది, 4000 ఎక్కువ పోయినాయి కదా, 4000 ज़्यादा गया। इनका तकलीफ है कि मेरा इसको कितने में मिला? 16 में, और मुझे कितना मिला? 20 में। तो उनका तकलीफ क्या है कि मेरे 4000 गया, एक्स्ट्रा गया, ज़्यादा गया। समझ में आया उनका तकलीफ? ఆయన బాధ ఏంటిది? 4000 ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, నేను నా 4000 రూపాయలు ఎక్కువ పోయినాయి, అంతే కదా బాధ. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఈయనకు 16కి వచ్చింది కానీ నాకు 20కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఈయన బాధ ఏంటిది? నాకు ఎక్కువ పోయినాయి అని బాధ కదా, రైట్? ఆయన బాధ ఏంటిది? ఫస్ట్సారి రిపీట్ చేస్తున్నాడు, నేను ఏదో పనిలో ఉన్నా, ఏదో చేస్తూ ఉన్నాం, బట్ ఆయన సరే ఇట్లా అయింది, నాకు ఇంతకు వచ్చింది, నాకు ఇంతకు వచ్చింది, ఇంతకు వచ్చింది, ఇంతకు వచ్చింది. సో వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ ఈజ్ హిస్ ప్రాబ్లం? ఎక్స్ట్రా పోయినాయి. ప్రాబ్లం ఫిక్స్ అయిందా లేదా? అయిందా కాలేదా? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఎప్పటికీ అదే చెప్తున్నాడు, 4000 ఎక్కువ పోయినాయి, 4000 ఎక్కువ పోయినాయి, 4000 ఎక్కువ పోయినాయి అని చెప్తున్నాడు. సో ప్రాబ్లం ఫిక్స్ అయిందా? ఆయన 4000 ఎక్కువ పోయింది అన్నది ఇంకేమన్నా ఉందా ప్రాబ్లం? అదే ప్రాబ్లమా ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లమా? యూ గాట్ ఫర్ లెస్ జెలసీ. ఓకే, జెలసీ, యూ గాట్ లెస్, దట్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లం. ఇంకేమన్నా ఉందా ప్రాబ్లం? బాధ. యాక్చువల్లీ ఈయన ప్రాబ్లం నా 4000 పోయినాయి అని కాదు, ఈయన 4000 ఎందుకు పోలేదని. అర్థమైందా? हमको ही पता नहीं चलता कि हम किस प्रॉब्लम में हैं, हमारा समस्या क्या है, वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट हैव ए हैबिट टू सी इनसाइड. अंदर झाँक के देखने का हमको आदत नहीं है, हमारे माइंड को रीड करने का हमारे को आदत नहीं है. वी डोंट नो हाउ टू रीड अवर माइंड, हाउ टू गो इनटू डेप्थ अवर माइंड. तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा भी हमको समझ में नहीं आता. तो उसका प्रॉब्लम मैं उसको समझाया कि तेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरे 4000 गए, तेरा प्रॉब्लम ये है कि उसके 4000 क्यों नहीं गए. समझ में? నీ సమస్య నీ 4000 పోయినాయని కాదు, అయినా 4000 ఎందుకు పోలేదని సమస్యనే. तो जब हम డీప్లీ మన లోపలికి వెళ్ళి చూసే అలవాటు ఉంటే ఈ విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి. ఆయన సమస్య ఆయనకు అర్థమైతే లేదు, ఆయన సమస్య ఎదుటి పర్సన్కి ఎందుకు అర్థమైంది? बिकॉज ही यूज टू गो इनसाइड डेप्थ ऑफ द माइंड. समझ में आया? वो इनको कुएं में उतरने का आदत है, तो उनका भी गहराई कितना है समझ में आ गया. So his problem is not that he is losing 4000. His problem is that why he is not lost 4000. समझ में? तो ये हमको समझ में नहीं आता कि हमारा क्या चल रहा है, మన మైండ్లో ఏం నడుస్తున్నదో అర్థం కాదు. అది అర్థమైతే ఈ సిచ్యువేషన్కి ఎందుకు వస్తాం, ఈ పరిస్థితి ఎందుకైతే. एंड दैट इज़ नॉट अ बिग इशू. वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है పెద్ద ఇష్యూ. ఆయన ఇంటెన్షన్ ఏంటిది? నా డబ్బులు పోయినాయి అని కాదు, ఆయన ఇంటెన్షన్ ఏంటిది? వేరే వాళ్ళ డబ్బులు ఎందుకు పోలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక విషయం ఏంటిది? ఈయన బాధపడాల్సింది నా 4000 పోయినాయి అని కాదు, ఆయన సంతోషపడాల్సింది ఈయన 4000 పోలేదని. मेरा तो हो गया नुकसान, लेकिन कम से कम उसका तो नुकसान नहीं हुआ, राइट? नाकैते राय दलिगिंदी, मुझे तो पत्थर लग गया, जख्म हुआ, कम से कम उसको तो नहीं हुआ. खुश रहना ना, इधर इट्ले ఒకరన్నా సేవ్ అయిన రాలేదా? सो ही शुड बी हैप्पी, खुश रहना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं रहता. उसका प्रॉब्लम है कि उसका क्यों नहीं गया, मेरा गया भी नहीं, उसका क्यों नहीं गया. मेरा गए तो गया साला बाढ़ में, नाद बोते वो नहीं.
लेकिन उसका गया क्यों नहीं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये पता भी नहीं कि इसके वजह से वो सफर हो रहा है। దట్ మైట్ బి ద స్మాల్ థింగ్. కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పిన. అర్థమైందిగా? మన మైండ్లో ఏం నడుస్తున్నదో మనకు అర్థం కాదు. ఎందుకు అర్థం కాదు? మనకు మన మైండ్ను చూసే అలవాటు మనకు లేదు. ప్రతిసారి వేరే వాళ్ళనే చూస్తూ ఉంటాం. ఏ క్యా కర్ రా, ఓ క్యా కర్ రా, ఏ క్యా బోల్ రా, वो क्या बोल रहा, वो मेरे बारे में बोल रहा कि तेरे बारे में बोल रहा कि बस यही चलता जिंदगी भर. और हम धीरे धीरे कुएं में उतर रहे, समझ में नहीं आता. हम धीरे धीरे समुद्र में डूब रहे, समझ में नहीं आता. अरे हाँ, हम डूब रहे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको हमेशा दूसरों की पड़ी रहती. वी विल लिव एक्सटर्नल वर्ल्ड. इसको क्या बोलते हैं? हम बाहर की जिंदगी जीते रहते हैं हमेशा. एक्सटर्नल वर्ल्ड, हर चीज बाहर खोजते रहते. एवरीथिंग वी विल सर्च आउटसाइड ओनली. इसलिए हमको चीज मिलती नहीं है. जिस चीज की खोज है वो अंदर है, और हम ढूंढते रहते बाहर 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 बाहर. ये चीज में, ये इसमें, उसमें, ये वस्तु में, ये हर चीज में ढूंढते रहते. ये बंगला, वो बंगला, ये गाड़ी, वो गाड़ी. कहीं पे भी शांति नहीं. नो वेयर पीस, नो वेयर पीस. कहीं पे भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति बाहर है ही नहीं. कहीं पे भी हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस बाहर है ही नहीं. ఎక్కడ కూడా సంతోషం లేదు, ఎక్కడ కూడా శాంతి లేదు, ఎక్కడ కూడా తృప్తి లేదు. నో సాటిస్ఫैक्शन, नो सैटिस्फैक्शन. समझ में आया? क्यों? क्योंकि बाहर है ही नहीं जिसको तुम ढूंढ रहे बाहर. कोई घर में, कोई बंगले में, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई गर्लफ्रेंड में, कोई बीवी में, कोई बच्चे में, कोई हस्बैंड में, कोई है ही नहीं. वो चीज बाहर नहीं है. ये चीज बाहर कहीं नहीं है. ये चीज अंदर की बात है. ये सारी बातें अंदर की बात है. ఇవన్నీ లోపల విషయాలు, లోపల ప్రపంచం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్నర్ వరల్డ్. इनर वर्ल्ड, ये अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें नहीं है. समझ में आ रहा है? तो तुम सोचे कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, ये लेने से होगा, वो गाड़ी से होगा, ये घोड़े से होगा, वो बाइक से होगा, ये कार से होगा, ये बंगले से होगा, ये पैसे से होगा. దీన్ తోటైతే దాన్ తోటైతే దేనితోటి సంతోషం రాదు, దేనితోటి శాంతి రాదు, దేనితోటి ప్రశాంతంగా ఉండలేము బయట. దట్ ఈజ్ యువర్ इनर थिंग. समझो तुमको कोई मर्सिडीज लेने के बाद तुम खुश हो गए. तुमको लगता है कि मर्सिडीज लेने के बाद खुशी आ गई, लेकिन वो खुशी अंदर से सिर्फ सिर उठाई. वो उधर से आई नहीं, इधर से ही आई. वो थोड़ा झलक दी, फिर हमको क्या लग रहा है कि वो मर्सिडीज आने से, ये लाइट आने से, वो बंगला आने से, गाड़ी आने से, दारू आने से, सिगरेट आने से, बीड़ी आने से, तंबाकू आने से, गुटखा आने से, पान आने से, कर्रा आने से अच्छा लग रहा है. नहीं है. वो अच्छा तुम्हारे अंदर से, भले ही वो वस्तु बाहर से दिख रहा है, लेकिन ये सारी चीजें अंदर से सिर उठाती है. और फिर हमको लगता है कि वो दिखने से ही वो खुशी, वो गाड़ी से निकल के तुम्हारे अंदर नहीं आया. वो शांति कोई बंगले से निकल के या पैसे से निकल के तुम्हारे अंदर नहीं आया. वो तुम्हारे अंदर से ही आया, और तुम्हारे अंदर ही सो के हो, सुप्त अवस्था में. अपने अंदर ही वो सारी चीजें सुप्त अवस्था में.
उसके ऊपर हमने ब्लैंकेट डाल दिया, ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के पर्दे के ऊपर पर्दा, पर्दे के ऊपर पर्दा डाल के उसको नीचे दबा के रखा, और फिर बाहर ढूंढ रहे कहाँ है, किधर है, किधर है, किधर है, खुशी किधर है, संतोष एडुन्नदी, प्रशांतता एक्कडुन्नदी, और फिर हम बाहर ढूंढ रहे, ढूंढ रहे, ढूंढ रहे, ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा, मिलेगा भी नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले 100 जन्म में भी बाहर नहीं मिलेगा खुशी। अगले 1000 जन्म में भी नहीं मिलेगा, बाहर ढूंढेगा मिलेगा ही नहीं। वो बाहर की वस्तु ही नहीं है, वो बाहर की चीज नहीं है, वो तुम्हारे अंतर मन में है, तुम्हारे अंदर है। वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार उस चीज को तुमने जान लिया तो वो मर्सिडीज रहे कि मारुति रहे कि नहीं रहे, तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। समझ में आ रहा है? हमेशा के लिए खुश रहोगे, हैप्पी। फिर हमको ऐसा लगता है कि ये 90 मारने से, 180 मारने से, 360 मारने से कुछ नहीं है, उससे तो बीमारी आता है, खुशी नहीं आती। उस टाइम के लिए खुशी लगती है, लेकिन बाद में पता चला लीवर गया, पैंक्रियास गया, लंग्स गया, किडनी गया, और लास्ट में हम खुद चले जाते। कुछ नहीं आता उससे, कुछ भी नहीं आता। समझ में आ रहा है? ये सब अंदर की बातें हैं, इनर वर्ल्ड। तो इसीलिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा, ये सबसे ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा, किचन में क्या चल रहा, कॉलोनी में क्या चल रहा, जी न्यूज में क्या चल रहा, थिएटर में क्या चल रहा, अमेरिका में क्या चल रहा, लंदन में क्या चल रहा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमको फर्क उससे पड़ता है। हमारे दिमाग में మన మనసులో ఏం నడుస్తున్నది దాంతోటి डिफरेंस తేడా ఉంటాయి। समझ में आ रहा है अच्छे से? उस बात को समझ में, तो अवर इंटेंशंस आर ऑलवेज मेन। दिमाग में मेरा इंटेंशन क्या है, कैसा है उनका, मैंने बताया एग्जांपल फोन का, उसको पता ही नहीं कि इंटेंशन क्या है उनका। उसको लग रहा है कि मेरे को दर्द इसलिए कि मेरा 4000 गए, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका दर्द इसलिए कि उसके 4000 नहीं गए। तो हमारा रॉन्ग इंटेंशन रहता, हमारा क्या रहता, रॉन्ग रहता इंटेंशन। हम कुछ करते हैं तो रॉन्ग, और हमको वो अंदर चादर में रहता, उसके ऊपर पर्दा डालते हैं। दानपैना एम कप्तम पर्दा कप्पेस्ता होना। इसलिए मुझे अपने खुद को ही नहीं समझ में आता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और इसके वजह से वी विल लैंड अप इन प्रॉब्लम्स। फिर हम समस्या में आ जाते, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, और मुश्किल तब समझ में आता है जब वो बढ़ जाता है। जब वो मटका जब बढ़ जाता है तब वो ओवरफ्लो होता है, पानी टंकी जब भर जाता है तब ओवरफ्लो होता है। तो हमारा टंकी भरने तक के समझ में नहीं आता। अब टंकी भर गया, अब क्या करेंगे? इनिशियल में ही अगर समझ में आता ये टंकी इधर यहाँ तक के आया पानी, और हमको समझ में आया तो थोड़ा खाली कर सकते हैं, कुछ कर सकते। अब ये पूरा ही भर गया, अब ओवरफ्लो हो रहा है, तब क्या करेंगे? फिर कुछ करने के लिए समय बचता नहीं। बचता है कुछ समय? कुछ नहीं बचता है, खाली हाथ रहते और देखते देखते चले जाते।
जिंदगी खत्म, सब रिलेशन खत्म, एवरीथिंग। तो इसलिए राइट इंटेंशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है, ఇంపార్టెంట్. మన ఉద్దేశం, మన ఆలోచన ముఖ్యం. ఉద్దేశం ఏంటి? అష్టాంగ మార్గంలో 8 ఉన్నాయిగా, 8 ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ వన్ ఈజ్ of course intentions are more important. That is 8th one, right intention. राइट इंटेंशन नहीं है, कुछ बोलो मत, कुछ करो मत. तुमको समझ में आता अब मेरा राइट इंटेंशन नहीं है, मेरा इरादा सही नहीं है, तुम क्या करोगे? उसको होने नहीं दोगे, क्योंकि मेरा इरादा सही नहीं है. वो बेचारे का भला हो रहा है, वो फॉर्म भरने से उसको नौकरी मिल रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि इससे अच्छा नौकरी है जो है नहीं, जिसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, नहीं, ना 1 मिलता ना 2 मिलता, ये हमको पता है. समझ में? तो हमारा इंटेंशन, మన మనసులో ఏం నడుస్తున్నది, మన ఆలోచన ఏంటిది, మన ఉద్దేశం ఏంటిది, ఇది మనం ఒకవేళ చూడగలిగితే, अगर हम देख पाए तो तुम अपन सक्सेस के तरफ अपने कदम उठ जाते. फिर जो माइंड को देख पाया फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि रोकता माइंड ही है अपना. कौन रोकता हमको? प्रोग्रेस से रोकने वाला माइंड ही है. गलत काम कराने वाला भी हमारा ही माइंड है. जब हमारा ही मन को अगर हम समझ गए, देखना सीख गए कि क्या चल रहा है, तो फिर हम उसका सुनेंगे नहीं सुनेंगे. फिर वो गलत इशारे देते रहेगा, हम बोलेंगे कि नमस्कार, जाओ आगे बढ़ो. तो मेरे को इतने दिन बहुत परेशान किए, अब नहीं परेशान, अब नहीं. अब बोल रहा है दिमाग में मार मार मार. अब पहले भी मार मार बोले तो ही जाके मारा, और मैं इससे मरा. अभी मरने वाला नहीं हूँ. अब तू जा, तेरे को लेना है तो तू जा. माइंड को समझाएंगे, फिर समझ में आए. फिर हमारा कन्वर्सेशन दूसरे लोगों के साथ में नहीं रहेगा, हमारे माइंड के साथ ही रहेगा. पहले माइंड, फिर बाद में दूसरा. क्योंकि ये हमेशा हम किसी चीज से अगर परेशान है, अगर कोई कारण है, तो वो हमारा माइंड है. पूरा दुनिया परेशान है. और मन, माइंड सत्यानाश करके रख दिया. किसका? किसका माइंड? खुद का, सेल्फ. खुद का माइंड खत्म करके रख दिया. तो इसलिए इस माइंड में एवरी टाइम वी शुड नो दैट इस सेकंड मेरे मन में क्या चल रहा है. सिर्फ देखना है, रोकना, झगड़ना भी नहीं है उसके साथ में. मन के साथ झगड़ा नहीं करना है. जैसे दूसरों के साथ झगड़ा करने की आदत हो गई, और फिर हमारे मन के साथ ही हम झगड़ा करने लगे. ये क्या सोच रहा तू, ये क्या सोच रही तू, उसके बारे में कैसे गलत सोच. झगड़ा नहीं करना है, बस देखना है. समझो किसी का अच्छा हुआ और हमको जेलसी, मन में जेलसी आया, तो मन को देखना, बस देखना है, झगड़ा नहीं करना. क्यों जेलसी कर रहा, क्यों ये कर रहा, क्यों, झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ देखना है. जस्ट वी हैव टू सी. కేవలం మనం చూడాలంతే. మన మనసుతోటి కూడా గొడవ పెట్టుకోవద్దు.
ఎవరి మనసుతోటి? మన ఓన్ మైండ్. डोंट फाइट विथ योर माइंड, अदरवाइज यू विल डिफीटेड. नहीं तो तुम हार जाओगे. वो माइंड ही भटका देगा तुमको, माइंड ही गलत रास्ता बता देगा. वो बोलेगा मेरे को हराने का ये रास्ता है. हमको लगता है अच्छा, फिर हम उस रास्ते से जाते और हम खुद ही हार जाते. माइंड ही हमको 10 ऑप्शन बताता. फिर तू मेरे को हराना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है मेरे से. हाँ, जैसे धूम धूम देखे. हाँ, मेरे को अगर पकड़ना है तो फिर रास्ता बता दो कि ऐसा पकड़ सकते हैं, वैसा पकड़ सकते हैं. मुझे पकड़ना है तो हाँ, प्लान. ऐसा मुझे नहीं पकड़ सकते. मैं तुम्हारे सामने ही छोड़ के निकल जाऊंगा. तुम्हारे अंदर से ही मैं हीरे जवाहर लेके भाग जाऊंगा और तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते. अगर मेरे को पकड़ना है तो ये है. तो ऐसा हमारा माइंड हमको बताता है कि मुझे अगर डिफीट करना है तो तुझे ये रास्ता जा, और हम उस रास्ते से जाते हैं क्योंकि माइंड हमको डाइवर्ट कर देता है. फिर अगर उसके साथ झगड़ा किए तो डाइवर्ट कर देता, और हमको लगता है कि माइंड को हराने का ये रास्ता है, और हम उस रास्ते से खुद ही हार जाते. ऑलरेडी एक हीरा गया, दूसरा हीरा भी चले जाता, फिर हम खाली हाथ रह जाते. समझ में आ रहा है? तो माइंड से कभी झगड़ा नहीं करना. समझ में आ गया? पहली बात तो समझ में नहीं आता कि हमारे मन में ऐसा विचार चल रहा है. మన మనసులో ఈ ఆలోచన ఇలాంటి చెడు ఏదో ఒకటి నడుస్తున్నది, దాంతోటి మనకు సమస్య, ప్రాబ్లం, దాంతోటి హాని. फॉर एग्जाम्पल మన మైండ్ अगर हम उसके साथ झगड़ा करने लगे, దాంతోటి యుద్ధం పెట్టుకుంటే అది మనల్ని డిఫీట్ చేస్తుంది అన్న. యుద్ధం పెట్టుకోవద్దు. జస్ట్ అబ్జర్వ్, बस देखना, जस्ट सी, जस्ट वॉच. उसके आगे एक कदम नहीं, नहीं तो तुम डिफीट. मन से झगड़ कर कोई नहीं जीता अभी तक, और जीत भी नहीं सकता. अपने मन से, माइंड से झगड़ कर, पहली बात तो हमको देखना नहीं आता. झगड़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ. अगर गलती से कोई समझ में आ गया कि हमारा माइंड ऐसा गलत क्यों विचार कर रहा है, मेरे रिलेटिव के बारे में, मेरे पति के बारे में, पत्नी के बारे में, भाई के बारे में, बहन, ये ऐसे गलत क्यों विचार कर रहा मेरा माइंड. जैसे हम किसी ने गलत विचार किया, गलत बोला, हम झगड़ते उससे, ऐसा करते, तेरी तो क्या बोला, हाँ, चलते रहते ऐसा. ये शर्ट कलर पिलर सब होता है ना. जब कोई हमको लगता है कि ये गलत कर रहा है हमारे साथ, या हमारे रिलेटिव के साथ, या हमारे साथ, फिर हम उसके साथ झगड़े पे उतर जाते. ऐसा मन के साथ कभी नहीं उतरना. झगड़ा नहीं करना मन के साथ. मैं तेरे को देख लूँगा, वो तेरे को चित कर देगा ऐसी चीज. आज तक के झगड़ कर कोई इंसान मन से नहीं जीता. ये मनुष्य కూడా మనస్తోటి గొడవ పెట్టుకొని గెలవలే. కేవలం అబ్జర్వ్, జస్ట్ అబ్జర్వ్, జస్ట్ సీ, జస్ట్ వాచ్, जस्ट बी और विटनेस. बस देखो मन क्या कर रहा है. वो देखने से ही समझ जाता. क्या होता, ఏమైతుంది, what will happen, our mind will understand the language of only observation. सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन. उसके साथ कुछ भी छेड़खानी करोगे तो तुमको फिर दिन में तारे दिखाई दे. समझ में आ रहा है? सो माइंड के साथ कभी झगड़ा, ఎప్పుడు గొడవ, डोंट फाइट विथ योर माइंड.
Just observe your mind. Just see your mind and be equanimous. Be peaceful. Be stable. बस देखो और स्टेबल रहो, रिएक्ट मत करो। जैसे दूसरे के साथ रिएक्ट करते रहते, अबे तूने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा मन के साथ रिएक्ट मत करो, बस स्टेबल रहो। देख लिया मन में ये चल रहा है, बस ऑब्जर्व किया। देख लिया मन में ये चल रहा है, साइलेंस, कीप साइलेंस, जस्ट ऑब्जर्व। बस साक्षी बनो और समता में रहो, देखने का चीज को और फिर बैलेंस में रहने। बस देखकर ही मन के ऊपर विजय पा सकते हैं, सिर्फ देखकर, जस्ट ऑब्जर्व। అర్థమవుతుందా చెప్పేది? లోపలికి దిగుతుందా? దిగుతుందా? మంచిగా అర్థమవుతుందా? अब उदाहरण ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయి? ఇఫ్ యూ క్యాన్ సీ ద ఇంటెన్షన్స్, राइट इंटेंशन, सही सोच है नहीं है, सही है नहीं है, सम्यक है नहीं है। దీనికి బదులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాచింగ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాచింగ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ అబ్జర్వేషన్, ऑब्जर्वेशन, अपार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखने के, सिर्फ ऑब्जर्व करने के और सिर्फ साक्षी, विटनेस, साक्षी बनने के, विटनेस, दिट इज कॉल्ड विटनेस। हम देख रहे, बस कुछ नहीं कर रहे, वो उसको मार रहा है, वो लेके भाग गया, हम देख रहे, जनरली ऊपर से कुछ गिर रहा है, हम देख रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। जस्ट सी, विटनेस, जस्ट ऑब्जर्वर, जस्ट अ वॉचर, डोंट बी अ डूअर। कुछ मत करो मन के साथ, स्पेशली कुछ भी करने जाओगे तो हार जाओगे, और इसके सिवा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। कहां मिलता फाइटिंग करने को, कहां मिलता झगड़ा करने को, वो तो भागता कहीं। तुम अगर झगड़ा करना भी चाहे, मिलेगा क्या? माइंड, మనసు దొరుకుతా చేతికి? कुछ भी नहीं कर पाओगे, नथिंग यू कैन डू, ఏం చేయలేం। మనం చేసేది కేవలం అబ్జర్వేషన్, జస్ట్ సీ, జస్ట్ వాచ్, జస్ట్ ऑब्जर्व, जस्ट ब विटनेस, सिर्फ साक्षी बनो, सिर्फ देखो क्या कर रहे, बस देखो। देखने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ఏమవుతుంది? చూస్తే ఏమవుతుంది? మనసు చేస్తున్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తప్పుడు ఆలోచన చేస్తున్నాయి, తప్పుడు పని చేస్తున్నాయి। ఒకరిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైండ్లో ఒకరు మొబైల్ దొంగతనం చేసే థాట్ వచ్చింది, ఒక డబ్బులు చేసే థాట్ వచ్చింది, ఒకరిని చీట్ చేసే థాట్ వచ్చింది, ఒకరిని మోసం చేసే థాట్ వచ్చింది। మీరు జస్ట్ చూసింది అనుకో, ఆ థాట్ ఏమైపోతుంది? దట్ విల్ ఆటోమేటికలీ కమ్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పాయింట్। ఆ థాట్ అడిపోయింది కదా, అది జేబు దొంగతనం చేసేది, సో इट इज कमिंग टू रिवर्स, फिर अपने तरफ आ रहा है, रिवर्स। जो वो जो उधर जा रहा था उसका ఏమైపోతుంది? అది మార్గం మళ్ళీ రివర్స్లో వచ్చేస్తుంది। కేవలం చూస్తాను ఎట్లయితుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పిల్లల్ని స్కూల్ పంపాను, చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని స్కూల్ పంపాను, మీరేమైనా పోయి క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, గోళీలు ఆడుతున్నారు, कंचे खेल रहे थे और बाप ने देख लिया, माँ ने देख लिया, तो क्या होगा? तुम उधर से सीधा या तो स्कूल या तो घर, जस्ट वो देख लिए, कुछ नहीं बोले, చూసి వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు? వాళ్ళ దృష్టికి వచ్చింది అంతే। మీరేమనుకున్నా, నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు, నేను ఇక్కడ వాలీబాల్ ఆడతా, క్రికెట్ ఆడతా, కబడ్డీ ఆడతా, స్కూల్ బంక్ కొడతా అని అనుకున్నారు। बाय मिस्टेक, बाय चांस మీ ఇంట్లో ఎవరో చూశారు, तुमको समझ में आ गया कि ये मेरे को, मेरा बाप, मेरे माँ, मेरा पिता, कोई तो भी मुझे देख लिया। अब तुम क्या करोगे?
ఏం చేస్తారు అప్పుడు? वो ग्राउंड छोड़ के या तो स्कूल जाएंगे या फिर घर पे आ जाएंगे. समझ में? అట్లా అయిందా జరగలేదు? ఇప్పుడు మీరు తప్పు దొంగతనం చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డాడీ జేబు నుండి 100 రూపాయలు తీస్తున్నారు. మీ డాడీ దృష్టి జస్ట్ ఇట్లా మలుగుతున్నాడు అంతే, మీరేం చేస్తారు? అర్థమైంది కదా? ఇంకా ఆయన చూడలేదు, జస్ట్ టర్న్ అవుతున్నాడు అంతే. ఆయన ఏదో టీవీ చూస్తున్నాడు, ఇట్లా టర్న్ అవుతున్నాడు, మీ దృష్టి మీరేం చేస్తారు? ऐसे ही हमारा मन काम करता है. बस उसको देखने से ही वो चीज़ धीरे धीरे कम होने लगता, धीरे धीरे कम होता. अगर तुमको 24 आवर 365 डेज अप टू लास्ट ब्रीथ अगर मन को देखने की आदत पड़ गई तो मन से मुक्त, यू विल बी योर ओन मास्टर. फिर मन तुमको कुछ भी नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? అర్థమవుతుంది కదా? లోపలికి వెళ్ళి కిచెన్లోకి వెళ్ళి షుగర్ తీసినాం, డబ్బు ఓపెన్ చేస్తున్నాం, మదర్ది కాళ్ళ సప్పుడు వచ్చింది, ఏం చేస్తాం? కిచెన్ నుండి ఏదో చేతులు కడుక్కొని బయటికి. అర్థమైంది కదా? మన మైండ్ కూడా అలాగనే వర్క్ చేస్తుంది. लेकिन हमारा मुश्किल, सबसे बड़ा मुश्किल क्या है हमारा? మన పెద్ద సమస్య ఏంటిది? మన సమస్య ఏంటిది? हमको ऑब्जर्व करने नहीं आता. మనకు ऑब्जर्वेशन చేయడమే రాదు. क्योंकि हम कुछ करने में बिजी है. We are busy in doing something. Because of that we are unable to watch. समझ में आ रहा है? हम पढ़ाई करने में बिजी है, फिर एम्प्लॉयमेंट में बिजी है, फिर शादी में बिजी है, फिर बच्चों में बिजी है, फिर फैमिली में बिजी है, फिर सोसाइटी में बिजी है, फिर बंगले में बिजी है, फिर पैसे में बिजी, फिर अपार्टमेंट, फिर 1 एकड़ नहीं 1000 एकड़. हम तो बिजी, हमको वॉच करना कहाँ है? सो हम सिर्फ वॉचिंग छोड़ के बाकी सब करते, अच्छा बुरा ये वो सब करते. समझ में आया? वी आर सो बिजी. हम सिगरेट में बिजी, हम दारू में बिजी, हम मीटिंग में बिजी, हम इसमें बिजी, उसमें बिजी, सब बिजी. हमको हमारे माइंड को वॉच करते. सिंपल थिंग इन द वर्ल्ड इज जस्ट वॉच. इस दुनिया में सबसे आसान से आसान द सिंपलेस्ट, वेरी सिंपल, very simple thing is to watch. just see, सिर्फ देखो, सिर्फ देखो, just observe, just be a witness. वो सिंपल से सिंपल काम छोड़ के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम करते रहते हैं. हाँ अंधे ना? एरोप्लेन बनाना कम कॉम्प्लिकेटेड है, रॉकेट बनाना कम कॉम्प्लिकेटेड है. 1000 लोगों को लेके हवा में उड़ना वेरी डिफिकल्ट टास्क. कहीं पे अणुबम डाल के देश को उड़ाना वेरी डिफिकल्ट टास्क. और हम वो कर डालते. दुनिया का सबसे कठिन से कठिन काम करते हैं और आसान से आसान काम हमको नहीं आता. चूक गए. कुछ जल रहा है अंदर. ఏమైనా అర్థమవుతుందా? समझ में आया ना? हिंदी और तेलुगु सब. हम इतना बिजी हो गए बंगले बनाने में, गाड़ी बनाने में, घोड़ा बनाने में, सब बनाते रहे. अब बनाते रहते और हम इतना బిజీ हो गए कि कठिन से कटे, చాలా కఠినమైన క్రిటికల్ వర్క్ చేయడంలో మనం బిజీ ఉన్నాం. 1000 ఒకరి గాలిలో ఎగరడమే చాలా పెద్ద డిఫికల్ట్ టాస్క్. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వర్క్. ఎగిరి కూడా ఏం చేస్తాం? ఎగిరిపోతాం.
ఎగిరి ఏం చేస్తాం? ఎగిరిపోతాం. మళ్ళీ ఒక్కరం ఎగరం, 1000 మందిని ఎంబడి తీసుకొని ఎగిరిపోతాం. అర్థమైందా? तो कितना कठिन काम है वो, कितना डिफिकल्ट काम है वो. दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काम, कठिन काम करने में हम बिजी है, और सिंपल से सिंपल काम हमको पता ही नहीं है. अब पता चलने के बाद भी वो काम करने बैठे तो 1 सेकंड के लिए सांस को देखो, सांस को देखो, तो सांस दिखता ही नहीं है. శ్వాసను చూడు, శ్వాసను చూడు, శ్వాస కనిపిస్తూనే లేదు. రెస్పిరేషన్, सी ब्रेथ, ब्रेथ ही समझ में नहीं आ रहा. हम इतना क्रिटिकल हो गए. नाक हमारा, सांस हमारा, माइंड हमारा, हमको ही समझ में नहीं आ रहा कि साला सांस चल भी रहा है कि नहीं चल रहा. इतना क्रिटिकल हो गया, इतना क्रिटिकल काम कर रहे. समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है नहीं आ रहा है? सवेरे मेडिटेशन कर रहे सब? ఏం చెప్తున్నారు? 5 స్టెప్స్ क्या है? ఎనీవన్ ఒకరు లేచి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్? దొంగతనం చేయాలని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. అబద్ధాలను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించాలని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. వ్యభిచారం చేయాలని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ప్రాణాహింస చేయాలని ప్రతిజ్ఞ. ఈ పంచశీలాలు. వాట్ ఇస్ దీస్ ఆర్? పంచశీలాలు. 5 ప్రిసిప్ట్స్. శీలాలు. స్టెప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కూర్చుండడం, నడుము స్ట్రైట్ పెట్టడం, మెడల్ స్ట్రైట్ పెట్టడం, కళ్ళు మూసుకోవడం, శ్వాస పైన ధ్యాస పెట్టడం. హౌ సింపుల్. सिट समवेयर, कंफर्टेबल पोजीशन, आराम से बैठो, सुकून से बैठो, शांति से बैठो, कमर को सीधा रखो. वैसे तो सीधा है हम बेंड कर देते, तो इसलिए जैसा है नेचुरल वैसा सीधा रखो. गर्दन सीधा रखो, आंखें बंद करो और सांस के ऊपर ध्यान दो. सीधा ब्रेथ. ये जो सांस चल रहा, శ్వాస నడుస్తుందిగా, దాన్ని గమనించండి, చూడండి. వాచ్, అబ్జర్వ్. नहीं हो रहा है वो काम. అవుతుందా? बड़ा परेशानी, बड़ा बेचैनी. सिंपल काम हो रहा है. అవుతుందా ఈ సింపుల్ విషయం? బయటకి పరేషానీ. हलचल 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 हलचल, फिर आंखें खोले, फिर पाँव खोले, फिर हाथ खोले, फिर इधर देखे उधर देखे. नहीं हो रहा है. सिंपल काम हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम क्रिटिकल काम करने में, ये क्रिटिकल है, ये मारना क्रिटिकल है, ये तैयार करना क्रिटिकल है, लीवर को खराब करना क्रिटिकल है, पैंक्रियास को खराब करना क्रिटिकल है, लंग्स को खराब करना स्मोकिंग से कम कर रहे, आसान से कर रहे. डूइंग विथ एंजॉयमेंट, जॉयफुली वी आर डूइंग. क्रिटिकल काम आसानी से कर रहे, और आसान काम इतना क्रिटिकल हो गया कि वो हो ही नहीं रहा. समझ में आ रहा है? కఠినమైన విషయాన్ని సింపుల్గా చేసి పడేస్తున్నాం. సింపుల్ విషయం జరుగుతూనే లేదు. समझ में आ रहा है? అర్థమవుతుందా? दिस इज सिर्फ वॉच करते करते तुम मोक्ष यू कैन उपलब्ध. ముక్తి, ముక్తి అంటారు కదా, మోక్షం ముక్తి ఏంటియో కాదు. శ్వాసను అబ్జర్వ్ చేస్తూ 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 ముక్తి పొందొచ్చు, మోక్షం పొందొచ్చు, విముక్తి పొందొచ్చు, సర్వ దుఃఖాల నుండి निवारण పొందొచ్చు. सभी दुखों के बाहर जा सकते, मोक्ष मिल सकता. यानी ये स्वर्ग जो है वो छोटा कम लेवल है,
स्वर्गम అంటే उसका लेवल थोड़ा कम है, मोक्ष उससे बड़ा है, मुक्ति उससे बड़ा है। हेवन जो है ये लेवल इसका थोड़ा मोक्ष से कम है, नीचे, वो मोक्ष के नीचे रहता है, एक स्टेप नीचे, उससे भी आगे निकल सकते, स्वर्ग से भी ऊपर मोक्ष। सिंपल काम करते करते, सिंपल काम करते करते, दारू दवा दू ये तो सब छोटी छोटी बातें है, स्मोक वोक सब छोटी बात है, ड्रग्स विक्स सब छोटी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है, एनलाइटन, विश्व ज्ञानम, दुनिया का ज्ञान हो सकता है हमको सिर्फ सांस को देखते देखते देखते। जस्ट बी ऑब्जर्वर, सिर्फ हमको देखने की कला आनी चाहिए बस। अब वही बोलते कि आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देखो, सांस को देखो, कुछ मत करो, बस सांस को देखो। सांस को ज़्यादा लियो मत, ज़्यादा रोको मत, ज़्यादा स्पीड मत करो, ज़्यादा स्लो मत करो, तुम कुछ भी मत करो, దాన్ని ఎక్కువ స్పీడ్గా తీసుకోవద్దు, స్లోగా వదలొద్దు, మన నుండి అసలు ఏం చేయదు. జస్ట్ అబ్జర్వ్, జస్ట్ కీప్ యువర్ మైండ్ ఎట్ ద ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ నాస్ట్రిల్, ఈ ముక్కు పుటాల దగ్గర మైండ్ని పెట్టండి, గమనించండి అంతే. अब जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड रहता दरवाजे के पास, तुम रेस्टोरेंट गए और जैसे तुम जा रहे हो क्या करेगा, ओपन, जैसे तुम गए वो क्या करेगा, ओपन क्लोज। उसको कुछ लेना देना नहीं कि तुम अंदर गए कि दारू पिए कि दवा पिए कि पानी पिए कि, सिर्फ ऑब्जर्वर है। वैसे ही हमारे ये जो सांस चल रहा है, माइंड यहाँ पे रख के सिर्फ देखना है, जस्ट ऑब्जर्व। అర్థమవుతుందా? పెద్ద ఆశ్చర్యం, పెద్ద మ్యాజిక్ ఏం లేదు దీంట్లో, పెద్ద యుద్ధం ఏం లేదు ఇక్కడ, वेरी सिंपल थिंग, दुनिया का सबसे आसान काम। ओके, क्लोज इट।